مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. دشمن نے انفرادی طور پر بھی کوششیں کی اور منظم ہو کر بظاہر ایک ہو کر جماعت کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور پھر فرمایا کہ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا، اس کے مطابق ہم جماعت کو دنیا میں پھیلتا دیکھ رہے ہیں. یہ نام نہاد علماء اور مخالفین سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو اپنی پھونکوں سے ختم کر دیں گے، لیکن نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل پر جب کھڑے ہوں تو اپنی ہی تباہی ہوتی ہے. پھر یہاں قادیانیوں کو پنپنے کا، جلسے کا، تبلیغ کا موقع کیوں دیا گیا؟ اور آج بھی ساری دنیا میں ان کی سازشیں جاری ہیں. گزشتہ سال برطانیہ میں ان کا اجلاس ہوا، ہزاروں لوگ شریک ہو گئے. جنگ اخبار نے سرخی لگائی کہ 2800 خاندانوں نے اپنے بچوں کو احمدیت کے لیے وقف کیا، اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز سفارتکار جو برطانیہ میں سفیر رہے اور یہاں بھی ان کی حکومت رہی، اسی جلسے میں جا کر اعلان کیا کہ بھٹو تو میرا قائد ہے، لیکن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد میرا ان کے اس فیصلے کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں رہا. میڈیا بھی ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور میں نے دیکھا، اللہ وسایہ صاحب سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ افریقہ میں اگر کوئی آدمی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے تو یہی لوگ آگے بڑھ کر ان کو گود میں لیتے ہیں کہ آپ جس اسلام کی تلاش میں ہیں وہ اسلام ہمارے ساتھ ہے، اور ہزاروں لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے سازش کے شکار ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میرے مومن بھائیوں، اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں، وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے. جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں. عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا، اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا. مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا، افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا، ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا. تمام لوگ دفن ہو گئے، لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب، قادیانیت، مرزائیت، اور افریقہ، برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ پروان چڑھا، یہ دبا نہیں، پروان چڑھا، جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی. اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعد اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں. اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے.
दावत की शक्ल में हो, इश्तिहारात की शक्ल में हो, मुनादरों की शक्ल में हो, हर लिहाज से मुसलसल इस मजहब का ताक़ुब किया जाए, वरना जज्बाती नारों से तहरीक दबने वाली नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर इनके जो माबद हैं, इबादत की जगहें हैं, उनकी कुल तादाद 8000 से मुतजाविज है। 8000 से मुतजाविज है। दुनिया की 50 से ज्यादा जबानों के अंदर इनका लिटरेचर फैला हुआ है। कई रोजनामे ये निकालते हैं, अंग्रेजी में इनके अखबारात निकलते हैं, उर्दू में इनके अखबारात निकलते हैं, फारसी में इनके अखबारात निकलते हैं, अरबी में इनके अखबारात निकलते हैं, जर्मन में इनके अखबारात निकलते हैं, चाइनीज जबान के अंदर इनके अखबारात निकलते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जड़ों को बड़े ही मजबूत कर लिया है। इसी तरीके से आज कादियानियत का अगर खात्मा करना हो तो उनकी एक एक जड़ों को काटना होगा, महल्ले कूचों में उनको तलाश करना होगा, उनके माबदों की निशानदही करनी होगी, उनका समाजी बैकआउट करना होगा और उनका माशी बैकआउट करना होगा, उनकी दुकानों को तलाशना होगा, उनके मार्केट को पहचानना होगा और उम्मत मुस्लिमा में यह शऊर बेदार करना होगा कि जहां जहां कादियानी रहता हो उनकी दुकानों से ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए, ना खरीदा जाए ना उनको बेचा जाए। मेरे मोमिन भाइयों, यह एक मुसलसल जद्दोजहद का मुतकादा है, मुसलसल जद्दोजहद का मुतकादा है। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिदा जद्दोजहद इन लोगों के खिलाफ करें और इनके ताल्लुक से मालूमात फराहम करें, किताबें पढ़ें। और आखिर में मैं एक चीज आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये एक कैटलॉग है। देखें आप कितना मुनद्दम काम है। ये है कादियानियत का कैटलॉग। देखें आप कादियानियत की पहचान क्या है। यह मीनार हमको जहां नजर आएगा समझो कि वो कादियानियों का माबद है। देखिए आप पूरी दुनिया में इनकी एक्टिविटीज, बड़े बड़े जो है ना माबद इन्होंने तामीर किए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसी तरीके से घाना के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में। और ये अपने अंग्रेजी आकाओं के साथ मिलता जुलता है। MTA इंटरनेशनल टेलीविजन के नाम से इनका अपना टीवी है और ये अपने जो है आकाओं के साथ बैठकर जो है खुशामदी कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ देखें कि बड़े बड़े अंग्रेजी आका इसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बड़े बड़े यह उनका अपना कैटलॉग है, पूरी चीजें उनके अपने कैटलॉग में मौजूद है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना जो है मुतलव्विन है। और ये जो इनका अब मौजूदा जो है जानशीन है और इनका खलीफा चहरुम है और ये बानी है कादियानियत का, इसको पहचान। जी जी बिल्कुल। हाँ एक सवाल है जो 3 साल से लेकर मैं घूम रहा हूँ और ख्वाहिश थी कि आपके सामने रखूँ। जी मसला नहीं है, यहाँ माशाल्लाह जो भाई हैं बहुत कमिटेड हैं, काम से आया और के साथ अपने मिशन को पूरा करते हैं। मेरी से गुजारिश है कि आप कोई ऐसा हम सबको कोई मशवरा दीजिए जिससे जो मौजूद हैं इधर वो अब से उसको अपना मिशन बना लें और आने वाली जनरेशन को भी अच्छी गाइडेंस दें। किस हवाले से? वही मैं जो आपका बयान था हाँ। उसी से रिलेटेड था एक सवाल। जी जी मैं समझ गया। बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है यहाँ काफ़ी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इंतज़ामिया में जिन्होंने सिलसिला यहाँ हमें फराहम किया मस्जिद का, जिससे हम आके यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। मैं 30 साल से देख रहा हूँ सिलसिला कादियानी भी यहाँ मौजूद हैं। 20 साल पहले उन्होंने यहाँ एक जगह है कोना मेस, एक उनका इदारा था। कुछ साल पहले मैं बच्चों को लेके गया है मोटिवेशन दिलाने के लिए कि देखो इन्होंने ये किया, हम इंशाल्लाह अच्छा करें। दिखाने बच्चों को लेके गया था, मैं खुद हैरान। जो एक मिशन इदारा था, 3 बने हुए उधर। और हम जो देखिए इदारे बनाने पर तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, कानून का सहारा लेके नहीं, बाकी वो यहाँ बहुत क्या कहते हैं मैनेजमेंट की जबरदस्त है। तो आप भी जबरदस्त मैनेजमेंट कर लेना। ये तो तभी तो आपसे मैं तो आपको यही कहूँगा करें आप लोग भी, इदारे पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा बताएं कि आपसे सब अपना मिशन और जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ के वकला से, वकीलों से रब्ता करें कि यहाँ कानून के दायरे में रह के आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ के इमाम कराम, उनसे रब्ते में रहें। जी
If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد